session. Okay, people, it's time for us to learn new words and to learn new vocabulary. For that, I will just quickly pick up the presentation and I will just quickly teach you all the new words. Okay, so here we go. My screen is visible to all of you. Can I get an answer in yes, everyone? Message में आप yes करिए if you are seeing the screen. आपको ओ ग्रेट 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 परफेक्ट परफेक्ट. चलिए, द फर्स्ट वर्ड कमिंग अप टू यू इज cargo. Okay, now today I have brought vocabulary related to transport vehicles. Okay, so the first word is cargo. The spelling says cargo, cargo. Okay, and the meaning says goods or merchandise transported typically by ship, plane or truck. ओके, देखो कार्गो मतलब सामान की बात कर रहे हैं. जब सामान आप एक दूसरे से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो, ट्रांसफर करते हो, उसको बोलते हैं कार्गो. ओके, सो अगेन आई वुड से द स्पेलिंग सेज CARGO, कार्गो. गुड्स और मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्टेड typically by ship, plane or truck. Sample sentence says the ship was loaded with cargo including electronics and clothing for international delivery. Now ये जो सामान था वो out of country जा रहा था. That is why it is saying international delivery. Okay. The next we have is commute. Commute मतलब यहाँ से वहां मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना. That is commute or commuting. Okay. To travel regularly between home and work or school. जो आप रेगुलर जाते हो ना, एवरीडे जाते हो, मे बी यू गो टू स्कूल, यू गो टू ऑफिस. जो प्रोफेशनल्स मेरे बैच में यहाँ पे है वो ऑफिस जाते होंगे, जो स्टूडेंट्स है वो स्कूल जाते होंगे, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स है जो कॉलेज जाते होंगे. ओके, सो कम्यूट इज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन रेगुलर बेसिस. ओके, सैम्पल सेंटेंस उसका देखे तो I commute to the city every day by train for work. Okay? अगर आप इसको यूज करना चाहो तो आप ऐसा कह सकते हो I commute by bicycle, or you can say I commute by car or by bus. जो भी ट्रांसपोर्ट आप लेते हो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप लेते हो, you can use that way. Okay? The next word coming up for you people is intersection. INTERSECTION, intersection. ओके, इसका मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर टू और मोर रोड्स क्रॉस ईच अदर. ओके, दो या चार रास्ता जहां क्रॉस करता हो, दैट इज इंटरसेक्शन. ओके, देयर वाज अ ट्रैफिक जैम एट द इंटरसेक्शन ड्यू टू एन एक्सीडेंट. ओके, ट्रैफिक जैम हमारे लिए बहुत कॉमन है यहाँ अहमदाबाद में. आई एम श्योर आपके अपनी सिटीज में भी ये कॉमन होगा. सो इंटरसेक्शन इज द प्लेस where the roads cross one another. Okay, there was a traffic jam at the intersection due to an accident. Another vocabulary is navigation. NAVI, navy. GATION, gation. Pronounce it as navigation. Okay, meaning says the process of planning and directing the course of vehicle or vessel. ओके, आप काफी बार मूव करते हो ना बाय बाय कार और मे बी बाय बाइक, तो आप हम कहते हैं ना नेविगेशन ऑन करना ना, मुझे रास्ता नहीं पता, डायरेक्शन गूगल ऑन करना ना, आई डोंट नो द रोड. सो नेविगेशन इज ऑफ कोर्स डायरेक्शन. ओके, दैट इज इट, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग द कोर्स ऑफ द व्हीकल और वेसल. डायरेक्टिंग द कोर्स मतलब वी आर टॉकिंग ऑफ द पाथ, वी आर टॉकिंग ऑफ द रोड. ओके, दैट इज नेविगेशन. Using GPS for navigation, we were able to avoid getting lost on our road trip. Okay, GPS आप यूज करते हो नेविगेशन के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए, right? So this is the sample sentence. It is navigation. Okay.
And of course, we come to the end of today's session, and I quickly come back and I stop my sharing here. So I hope people enjoyed. Anybody would like to give a review on today's session? Just quickly raise your hand. I'll pick up the review and then I will end the session. Okay. या तुषार बोलिए. तुषार unmute and speak. मैम आइडियम क्या होते हैं? Idioms are, the phrases or the group of words जो आपको literal meaning तो नहीं बताता है, but उसका inner meaning बताता है. That is idiom. Okay. Idiom का जब मैंने first lecture लिया हुआ था, वो मैंने already upload करी है channel पे. आप please उसको एक बार refer करिए. ओके मैम. We have Manisha. Yes, Manisha? Manisha, आप unmute कर सकते हो. Yes, ma'am. Ma'am, what is imperative? Sorry. Ma'am, what is imperative? Again, these are, sentence types of sentences which we have recorded in the previous session, but still I will tell you. Imperative is command or request. जब आप कहते हो ना, may I please do this, or we give commands, close the door, put that proper. So imperative is command or request. ठीक है? Yes, You ma'am. can understand it. We already have the recording for that. Okay. Another one, I see now this is not for your question answer round, people. I just want feedback if it works. Okay, Divya, I'm unmuting you. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग मैम. Yeah. Good evening. मैम आज का जो टॉपिक था वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. मैम वो टॉपिक है ना, मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा क्योंकि मैंने अपने स्कूल कॉलेज टाइम में इतना वो पढ़ा नहीं था, मुझे समझा नहीं. आज Okay. भी जो पढ़ा तो थोड़ा डिफिकल्ट आया पढ़ने में. Okay. यस मैम. Okay. See, ये जो सेंटेंस वाला टॉपिक है ना पीपल, आपको ही नहीं, बहुत सारों को जो फर्स्ट टाइम ये सेंटेंस वाला टॉपिक देखते हैं या पढ़ते हैं, उन सबको ऐसा लगता है. ठीक है. सो डोंट वरी, इट इज नॉट न्यू कि आपको ये डिफिकल्ट लगा या आपको थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत हो रही है. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एंड जैसे मैंने बोला, आई विल बी गिविंग यू लिंक्स, आई विल बी गिविंग यू वर्कशीट्स. ओके. और आप ऐसा करो, एक दिन एक टॉपिक को रिवाइज करो. मैंने ये सेशन, हमारा टाइम फ्रेम लिमिटेड होता है, सो आई हैव गिवन ऑल द टॉपिक्स टुगेदर, कवर्ड ऑल द टॉपिक्स टुगेदर. जब आप इसको रिवाइज करोगे ना, तो इन डेप्थ एक एक टॉपिक को एक एक दिन में रिवाइज करो. ओके. फॉर एग्जाम्पल, आप फर्स्ट डे ले लो, व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस. देन 2-3 दिन उसको प्रैक्टिस करो. आफ्टर दैट आप ले लो व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसको 2-3 दिन प्रैक्टिस करो, वर्कशीट्स बनाओ खुद से, अपनी ग्रामर बुक से प्रैक्टिस करो. ओके. सो एक एक दिन, 2-2 दिन आप जब टॉपिक प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर. ओके. जब आप कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हो ना, दैट इज वाई आई से रीडिंग इज इंपॉर्टेंट. जब आप कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हो, कोई सेंटेंसेस पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, तो यू जस्ट अंडरस्टैंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर. आप ये समझो कि ये क्या है, असर्टिव है, डिक्लेरेटिव है, व्हाट दिस इज अबाउट. ठीक है. सो यूज ग्रामर एंड यूज इट इन अ रिवर्स वे. फाइन. अगेन आई वुड से कि रिकॉर्डिंग वगैरह ऑलरेडी है, डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. एंड अगर ऐसा होगा तो बिफोर आई फिनिश द सेशन, आई विल स्टिल टेल यू इन डिटेल. एक दिन में एक टॉपिक मैं समझाऊंगी आपको अगेन इन बिटवीन, बट मैं समझाऊं उसके पहले आई वॉन्ट यू टू डू योर होमवर्क. ठीक है. मैं एक एक टॉपिक वापस से समझाऊंगी आफ्टर 10 डेज, बट 10 डेज के पहले मैं एक टेस्ट लूंगी आज के सेशन का. ओके. तो मैं देखूंगी कि 10 डेज में अपनी कितनी टॉपिक प्रिपेयर करी. फाइन. एंड देन आई विल डिसाइड वेदर टू टेक अ डिटेल्ड सेशन और नॉट. मैं कराती जाऊंगी, आप प्रिपेयर नहीं करोगे तो आप समझोगे नहीं. ओके. सो डू इट दैट वे. मोक्षिता. यस. Good evening, ma'am. या. गुड Ma'am, I इवनिंग. want to review according of today's class. Ma'am, it was very nice. I was just I it was helpful and learning. थैंक यू सो मच Thank you, मोक्षिता. ma'am. थैंक यू. ओके. आई हैव श्रवणी. या. Hello, ma'am. हाय. Ma'am, your teaching method is very awesome. I can understand it very quickly. थैंक यू सो मच डियर.
First of all, I feel very hard to understand it, but now I feel very quickly. It's like a piece of the cake for me. I'm really happy you're using idiom. Yeah, that's great. So Thank what you, is ma'am. your age and what do you study? Miss, all day I study idioms of one or Yes. two. And which standard you are in? Which class you are in? 8th standard. That's lovely. That's lovely. All the best for your further studies. Nice. Thank you, ma'am. Okay, people, I don't see any further hands and it's great meeting you all. Good night for today. Now I'll catch you up on Tuesday. ठीक है हमारा first class होगा next week Tuesday. Till then, keep revising. Bye everyone.